آخان یوتھ اینڈ اسپورٹ بورڈ کے زیر اہتمام گرلس گائیڈ اور بوائز اسکاؤٹس کے لیے گلخملی تا ٹیرو ہائیکنگ بعنوان ہیلتھی لائف سٹائل کا اہتمام کیا گیا۔ 300 سے زائد گرلس گائیڈ اور بوائز اسکاؤٹ سمیت لوکل اور ریجنل ادارہ جاتی عہدیداران پر مشتمل یہ پیدل دستہ راستوں میں آگاہی نعروں اور بازاروں سے کچرا اٹھا کر صحت صفائی کا عملی پیغام دیا۔ مختلف مقامات پر عوام نے بچوں کو ویلکم کیا۔ ٹیرو بازار میں مختصر تقریب میں بچوں کی جانب سے عوام میں صحت صفائی آگاہی دی گئی۔ یوں یہ کاررواں امن متوازن زندگی کے رہنما اصولوں، تعلیم، صحت مندانہ مشاغل، بنیادی صحت کی اہم ضرورت، منشیات سے انکار، زندگی سے پیار، اخوت، بھائی چارگی، برداشت اور مثبت سماجی رجحانات جیسے رہنما اصولوں کا پیغام لے کر ٹیرو گراؤنڈ میں ایک تقریب کی شکل اختیار کیا، جہاں لیڈران اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا: سوسا پرشٹی آباد تن وشکور لوکل کونسل گلامل وشکور بسا تمام انتے ہنونو حیات سیشنا ہر دیو انتہائی کلومیو سری خوش آمدید رمن و ساتھ ہی ساتھ کا کہ اس پار ریجنل اترپو کونسل و لیڈرشپ حیرت تشریف کی انگیتی سنی ہمیں تنتے دی خوش آمدید و سن جستا اوا ہمیں تن انتہائی شکریہ ادا کمن کی گلخملی لوکل کونسل نے ریکارڈ قائم کیا، اپنے لیے ایک تالی بجائے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے، ہم وہ قوم ہیں جو 1 نمبر کی ٹراؤٹ فش فروخت کر کے 2 نمبر کی ہم ڈیو پیتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے، ہم وہ قوم ہیں اپنے گھر کی تازی سبزی کو چھوڑ کے بازار کی وہ دوسری سبزی ہم لیتے ہیں۔ یہاں پہ عمائدین ہیں، میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی، سکاؤٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سکاؤٹس ہیلدی ہو، چاہے گائیڈس ہو، سکاؤٹس ہو۔ آج کا ہمارا جو ہائیک کا مقصد یہی ہے کہ ہیلدی لائف سٹائل کو انکریج کرنا۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں صرف ایک ہی چیز ہے کہ ہم نے اپنے یوتھ کو ریئل لائف میں ایک اچھے شہری کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے سلیقے سکھایا۔ جس وقت ہم یوتھ تھے نا، یہ اپرچونیٹی نہیں تھے۔ جس وقت آپ کے جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، جس وقت یہ یوتھ تھے، ان کا نام نشان نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اخلاقی بھی تھے، اس کے باوجود وہ محنتی بھی تھے، اس کے باوجود وہ بڑوں کا کہنا بھی مانتے تھے، اس کے باوجود وہ صحیح اسلام کے بھی شیدائی تھے۔ ہم آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو صحیح معنوں میں سکاؤٹنگ اور گائیڈنگ کے ڈھانچے میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ایکٹیویٹی کے بعد ہم اس کو اس حد تک رکھتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اس کو زندگی کا حصہ نہیں بناتے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس طرح ایکٹیویٹیز کریں گے تو اس کے اندر استقامت پیدا ہوگی، آپ کے اندر صبر اور تحمل کا مظاہرہ آپ کریں گے۔ اس طرح کی ایکٹیویٹیز اگر ہم کریں گے تو ہمارے جسم مضبوط ہو جائے گا اور ہمارے جسم کے تمام حصے پراپر کام کریں گے، تو ہم ایک اچھے صحت مند شہری کے طور پہ ہم سامنے آئیں گے۔ اس کے بعد سینئر سٹیزن کے لیے ورزش کے فائدے کے حوالے ایک 100 میٹر ریس کا اہتمام کیا گیا۔ یاد رہے کہ ٹیرو میں موجود عمر رسیدہ بزرگ دادا سلطان اور دادی زرین جمال 70 سال کی عمر میں ابھی بھی صحت مند ہے۔ ایک AYSB لیڈران ان سے ملے اور انہیں ہار پہنا کر پنڈال تک لے آئے۔ والدین اور عوامی حلقوں نے اس طرح کے صحت مندانہ مشاغل کو نوجوانوں کے لیے فائدہ مند قرار دیتے ہوئے خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر فنڈا ٹوڈے سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے منتظمین نے کہا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ظاہر علی خان، ویلی کوآرڈینیٹر SDP گلاخملی ویلی۔ سب سے بیشتر میں فنڈا ٹوڈے کا مشکور ہوں کہ آپ جو آج یہ ہائیک ہے اسماعیلی بوائے اسکاؤٹس اور اسماعیلی گرلس گائیڈ کی جانب سے، جو لوکل کونسل گلاخملی AYSB کی جانب سے، اور دین ریجنل کونسل کے AYSB جو ہماری ٹیم ہے ان کی ایک ٹیم ورک سے یہ جو آج ہائیکنگ انعقاد کیا گیا ہے، اس کو کوریج دینے پہ آپ کا تھینکس۔ خاص کر اپنا رحمت صاحب بہت ہی اچھے جو سوشل ہمارے پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو میڈیا تک اور آؤٹ سائڈر تک لے جائے گا۔ باقی جہاں تک اس ہائیک کو انعقاد کرنے کا جو مقصد ہے وہ موٹو سے ہی واضح ہے، کیونکہ وہ پیچھے بینر بھی آپ کو نظر آتا ہوگا، اس میں لکھا ہوا ہے انکریج ہیلدی لائف سٹائل۔ یقیناً جو آج کل بڑھتے ہوئے مختلف رجحانات ہے ہیلتھ کو لے کے، مینٹل ہو یا فزیکل ہو یا ڈائٹنگ کو لے کے، سپورٹس کو لے کے جو کمزوریاں ہیں ان کو کاؤنٹر کرنا اور اس حوالے سے اپنے جو معاشرے میں ایک اویئرنیس لوگوں کے اندر اجاگر کرنا ہے، یہ ایک اس کا
मकसद है। और इसका आप अमली मुजाहरा देख रहे हैं, यहाँ मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हो गई। हाइकिंग ख़ुद ही एक फ़िज़िकल एक्टिविटी है, उसके बाद यहाँ रनिंग का हो गया, जो स्नो रेस था उसका इनेकाद किया गया। फिर एक और इसका जो एक तो फ़िज़िकल हेल्थ के हवाले से इसका एक पर्सपेक्टिव था, फिर इसका मेंटल हेल्थ के हवाले से भी है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। बाकी जो एक अहम चीज़ है, जिस तरह आप देख रहे हैं कि एक इंक्लूसिवनेस माहौल या इंक्लूसिव माहौल का जो है वो डेवलप करना है, सेंस डेवलप करना है, जिसमें आप बेहतर जानते हैं कि आज जो नई नस्ल है और उसमें और जो सीनियर सिटीजन्स है, बुज़ुर्ग है, उनमें एक गैप पैदा हुआ है, वो क्योंकि उनकी लाइफ पैटर्न ही डिफरेंट है। तो उस गैप को भी किसी हद तक फिल करने का एक मकसद है। इस किस्म की एक्टिविटीज़ आप देख रहे हैं, हमने अपने सीनियर सिटीजन्स को इसमें शामिल किया है। स्काउट्स और गाइड्स ने, लीडरशिप ने उनको रिसीव किया। और उसके बाद अपने जो हमारी लीडरशिप है, रीजन से भी आई हुई है, लोकल की भी लीडरशिप है। तो लीडरशिप और स्काउट्स जब ये गाइड्स आपस में ये कोई इस तरह की कंबाइन एक्टिविटीज़ जब करते हैं, तो वहाँ लर्निंग और फिर वो एक टीम वर्क का, वहाँ से एक दूसरे से लर्निंग बाय डूइंग वाला वो जो होता है वो है। तो ओवरऑल जो हाइकिंग है, इसके पीछे बहुत सारे मकासद है, जिस तरह मैंने आपको बताया। मैं एक दोबारा आपको मतलब याद दहानी कर रहा हूँ कि एक तो इसका मेंटल और फिजिकल हेल्थ के हवाले से है, और माहौल के हवाले से है कि हम हेल्थ एक्टिविटीज़ कराएं। जिस तरह आपने एक्टिविटीज़ देखे मार्केट एरिया में जो है, जो सफाई का वो किया गया, यह था। उसके बाद जो सोशल इंक्लूजन का एक कंसेप्ट इस बीच में है, जिस तरह सीनियर सिटीज़न को लेके आना, लीडरशिप के साथ बैठना, सोसाइटी में वलीदीन यहाँ पे हमें ज्वाइन किया, फीमेल्स आ गए, बच्चे आ गए, बड़े आ गए, तो तमाम तबकों को ला के एक कंबाइंड सोशल इंक्लूजन था। फिर लीडरशिप हमारे साथ थी, उससे लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इस चीज़ में ऐड थी। तो ये एक कामयाब, और मेरे ख्याल में लोकल कौंसिल गुलाखमुली में ये पहले अपनी नोयत की एक हाइकिंग है, जिसमें इतनी तादाद में यहाँ 300+ स्काउट्स और गाइड्स है। लीडरशिप की तादाद भी यहाँ दर्जनों में है। तो हम सब यहाँ पे आए और ये कामयाब हुआ, और इस कामयाबी के पीछे यकीनन एक सहरा फंडर टुडे के भी सर जाता है। तो आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जावेद इकबाल, चेयरमैन आगा खान यूथ एंड स्पोर्ट बोर्ड फॉर गुपिस यासीन। सबसे पहले मैं फंडर टुडे का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आज की हमारी इस हाइक को सोशल मीडिया में कवरेज देने में इन्होंने कलीदी रोल प्ले किया। जहाँ तक आज के इस इवेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, आगा खान यूथ एंड स्पोर्ट बोर्ड की हमेशा ये कोशिश रही है कि वो हमारे जो यूथ, चाहे वो बॉयज़ हो गर्ल्स हो, हम हमेशा उनमें हेल्दी एक्टिविटीज़ को इनकरेज करते हैं। इसके अलावा हम स्काउटिंग और गाइडिंग पे काम करते हैं। स्काउटिंग और गाइडिंग पे काम करने का जो हमारा बुनियादी मकसद है कि हर बच्चे को, जो भी बच्चे है, जिस सोसाइटी, जिस मुआशरे में वो रहता है, उस मुआशरे का एक मुफीद कारकुन बनाए। वो इस मुआशरे में पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए, ड्रग्स के प्रिवेंशन के लिए, दूसरी जितने भी अनहेल्दी और ईवल एक्टिविटीज़ है उनको रोकने में अपना जो मैंडेटरी रोल है उसको प्ले करें। आज की हमारी एक्टिविटी का मकसद ये था कि मुआशरे में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की बुराइयाँ जन्म ले रही है, सोशल मीडिया का मिसयूज़ हो रहा है, हमारे नौजवानों का ड्रग्स की तरफ ट्रेंड बढ़ रहा है, नौजवानों में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ वक्त जो जन्म ले रही हैं। तो इनको रोकने के लिए हमने आज का हमारा जो इस हाइक का जो मोटो था, इनकरेज हेल्दी लाइफस्टाइल, इसके नाम से ये हुआ था। एसीडीपी वैली में बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन रही। हम बच्चों से ये गुजारिश करते हैं कि सोशल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के साथ साथ जो अहम जो आपकी प्रायोरिटी है वो आपकी एकेडमिक, आपकी एजुकेशन है। नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर एजुकेशन। आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन, आप एक अच्छी गाइड, आप एक अच्छे बॉय स्काउट उस वक्त बन सकते हैं जब एक अच्छे स्टूडेंट होंगे। हमारी कोशिश रही है कि हमारा स्काउट्स, हमारे गाइड्स जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं उस इंस्टीट्यूट का एक प्रोमिनेंट, एक कॉम्पिटेंट स्टूडेंट के तौर पे सामने आ जाए। मैं तमाम स्काउट्स, गाइड्स, लोकल रीजनल लीडरशिप, कम्युनिटी और जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजर्स थे, और खुसूसन हमारे लोकल काउंसिल गुलाखमुली के चेयर, एसीडीपी वैली के कोऑर्डिनेटर ज़हीर, फंडर टुडे लोकल काउंसिल के प्रेसिडेंट, विंटर स्पोर्ट्स क्लब के हमारे प्रेसिडेंट सरदार आज़म, तमाम का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने इस इवेंट को चार चांद लगाने में अपना रोल प्ले किया। थैंक यू वेरी मच। चेयरमैन है कि YSP लोकल काउंसिल फंडर। मैं आज यहाँ पे जो स्नो हाइक है ऑर्गेनाइज्ड बाय लोकल काउंसिल गुलाखमुली, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बड़ी तादाद में स्कोर्ट्स और गाइड्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट की। सखी मुराद बेसिकली गवर्नमेंट एजुकेशन में एज ए टीचर काम कर रहा हूँ। यहाँ पे एक सोशल वर्कर बासित प्रेसिडेंट इस्माइली काउंसिल में काम कर रहा हूँ। स्नो हाइकिंग की अगर हम बात करें तो एक किस्म की हेल्थ एक्टिविटी, एक्सरसाइज के तौर पर ये करामत होता है। लेकिन यहाँ पे एज ए स्काउट और गाइड, ये दो कंपोनेंट है जो बेडान पॉल ने हमें आइडिया दिया है। इसको प्रमोट करके हमारी
पहली फुर्सत में ये होता है कि जितने हमारे यूथ है ये सारे के सारे पॉजिटिव माइंड में एक अच्छी पाकिस्तानी शहरी बन सके। छोटी छोटी बातों में ख़ुदकुशी का मामला है। पहले ज़माने में इतने हाइपर हम क्यों नहीं थे, हम इतने इमोशनल नहीं क्यों नहीं थे, हम क्या हमारी क्या रिक्वायरमेंट नहीं थी। आज के ज़माने में इतनी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद ये सुसाइड केसेस क्यों हो रहा है। तो कोशिश हमारी ये होती है कि गेट टुगेदर करने के बाद इनको हम थोड़ी बहुत ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले आप एक अच्छे स्टूडेंट बने, वही आपका मैंडेट है। इसके बाद आप स्काउट और गाइड बने और वो रियल लाइफ में स्काउटिंग और गाइडिंग के कुछ असरात मुआशरे में नज़र आ सके, जो आपके स्कूलों में, कॉलेज में, जिस किसी इदारे में भी आप जा रहे हैं, कम अज़ कम आप अपने आप को एक अच्छे पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से आप पेश करें, इसका अक्स बन सके। गुलाखमुली, टेरू जैसे दूर अफ्तदा इलाकों में मौसमी शिदत के बावजूद यहाँ के नौजवान मुआशरती इस्लाह और ममलिकत खुददाद पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बनाने के अज़म से सरशार नज़र आए। ज़रूरत इस अमर की है कि बेहतरीन मुआशरती, समाजी और मुस्बित रुझानात का अमली मुज़ाहिरा हर ज़ी शऊर इंसान को ख़ुद से शुरू करना होगा। हम सभी को अपने हिस्से का चिराग रोशन करना होगा, तभी हम इस मकसद में कामयाब हो सकते हैं। bisa tamaman kagi kandur jun haira gitu sumi bisa safan bobush. फंडा टुडे के प्रोग्राम सेहतमंदाना मशागिल आप देख रहे थे और यहाँ पे हम हाइकिंग का आपको आज प्रोग्राम दिखा दिया। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। इस प्रोग्राम को आप तक पहुँचाने के लिए मेरे साथ फ़नी माविनत हासिल था मुमताज़ अली का। इंशाल्लाह फिर कभी किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।